Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. So students, in today's session, we will going to study the detail after genetic code. But let us revise again the previous session's topic, genetic code. The relationship between the sequence of amino acids and polypeptide chain as well as nucleotide sequence of mRNA, that is actually known as genetic code. And we have understood the relationship between DNA giving message to mRNA and mRNA taking message to the place where protein synthesis has to be performed. So it was hypothesized by George Gamow that triplet codon is an operative as DNA contains only 4 bases while number of amino acids are 20. So 64 triplet codons would be there. And even the other scientists like Hargobind Khurana as well as Nirenberg, they also help to deciphering the code by making cell-free system for protein synthesis. All these things we have earlier completed. So I will not take it in detail. Then even we discussed about this codon for various amino acids. We listed 20 amino acids, their short forms, they are given over here. I hope you revised it. Then even how from this DNA molecule the mRNA has taken the message in a coded form that we have completed. Then even the triplet codon we matched with this chart. So in this way, methionine, it has a dual function, and a phenylalanine chain that is formed having peptide bonds in between. So this is a protein molecule having same type of amino acids. Then even we have discussed regarding the salient features of genetic code. They are very important many times. So many questions they are asked based on this particular topic. So again, let us revise, let us recap quickly. Specify or focus on the blue colored words which I have highlighted. So the codon is triplet. Then there are three stop codons, right? And we have mentioned, I've told you to mention the names like UAA, then UAG, and UGA. These three are known as stop codons because they are responsible just to stop the process of protein synthesis. Why? Because they are not meant for any amino acid. This is the reason. Then the codons, they are unambiguous as well as they are very, very specific. Some of the amino acids, they are coded by more than one codon. Therefore, the code is degenerate. Then the codon that is the mRNA, it reads in contiguous fashion. There are no punctuations. And lastly, the code is nearly universal, found as such in most probably all the organisms. Some few examples they are given, like from bacteria to human, UUU would code for phenylalanine. Some exceptions are found, like in mitochondrial codons as well as some protozoans. And we have seen always the protein synthesis, it will start with methionine, and this is also known as initial codon, right? Means that sequence which is coding for methionine, it has dual function actually. So AUG will be acting as a initiator codon, right? So now today's topic is regarding the mutations as well as genetic code, how they are connected. One of the example we have understood earlier of sickle cell anemia, and we have seen that the relationship between the genes and DNA are the best understood by mutation studies. And here, the effect of large deletions and rearrangements in the segment of DNA, they are easy to comprehend. So it may result in loss
or gain of gene, and therefore the function is also changed. The effect of point mutation will be explained today, and the best example, as I have said to you, is of sickle cell anemia. We have seen earlier that in point mutation, if a change of single base pair in the gene for beta globin chain, it will result in the change of amino acid, and glutamate has changed, or glutamic acid has been changed to valine. So it will create a different protein. ये वैसी ही बात है, उस दिन मैंने आपको एप्पल का स्पेलिंग बनाने के लिए बोला था. सो एप्पल का स्पेलिंग हमको फॉर्म करना हो तो APPLE, बट अगर लास्ट में ई है, उसकी जगह में उसके पास वाला लेटर जैसे डी उसको रिप्लेस कर दूं या एफ को रिप्लेस कर दूं, तो एप्पल की स्पेलिंग बनेगी? नहीं बनेगी. टोटली स्पेलिंग अलग ही आपको फॉर्म होगी. तो एक अल्फ़ाबेट हमने चेंज किया तो कैसा चेंज हुआ, उसी तरह का चेंज एक अमीनो एसिड को रिप्लेस करने में या डिलीट करने में या ऐड करने में ये पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. सो इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट प्रोसेस. थोड़ी सी भी चेंज, थोड़ा सा भी मिस्टेक यहाँ पे कुछ दूसरे ही रिजल्ट्स देगा. हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ लिया है, जो आरबीसीज का जो शेप होता है, इट टर्न्ड टू सिकल शेप्ड, है ना. और इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, एंड दिस टाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया विल रिजल्ट. So effect of point mutation that inserts or deletes a base of structural gene can be better understood by one of the example. जो मैंने आपको समझाया अभी अल्फाबेट फॉर्म में, उसी तरह का ये एग्जाम्पल लिख के समझाया गया है आपकी बुक में. और इसी तरह का एग्जाम्पल अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे. सबसे पहले आप देखो, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है और इसका मीनिंग भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. राम हैज रेड कैप. ठीक है, सभी वर्ड्स 3-3 अल्फाबेट से बने हुए हैं. ये हम कंपेयर कर सकते हैं ट्रिपलेट कोडोन से. सो RAM इज वन ऑफ द कोडोन, देन HAS अनदर कोडोन, RED थर्ड कोडोन, एंड फोर्थ कोडोन इज CAP. ठीक है. सो इफ वी इंसर्ट अ लेटर B in between HAS and RED and rearrange the statement, it would read as follows. तो ये कैसे चेंज होगी? खाली हमने B इंसर्ट किया है, देखो, इसीलिए इस B अल्फाबेट को अलग कलर से आपको यहाँ पे बताया है. सो राम हैज, और यहाँ पे हम S और हैज और रेड के बीच में हम ये B डाल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इस प्लेस पे हमने B डाला है. ठीक है. तो रीअरेंजमेंट जैसे ही होगा तो ये एक एक खिसक जाएगा, क्योंकि 3-3 का ट्रिपलेट कोडोन बनेगा. यहाँ पे इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो BRE जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, DCA उसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, और लास्ट में एक P बच गया. सो सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, से B एंड I, तो उसके इसका क्या रिजल्ट होगा? Again, no meaning. Ram has BIREDCAP. कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. बट नाउ इफ वी इंसर्ट थर्ड लेटर टुगेदर, 3 लेटर्स टुगेदर, B भी कर रहे हैं, I भी कर रहे हैं, और उसके बाद G लगा रहे हैं, तब मीनिंग इसका कुछ निकलेगा. आप देखो, राम हैज बिग रेड कैप. अब इसका मीनिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं. सो जब भी ट्रिपलेट फॉर्म में ये लेटर आया, वर्ड आया, तो इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं. सो द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स RED one by one and rearranging the statement to make a triplet word. कैसे करेंगे? राम हैज EDCAP, जो यहाँ पे हमने देखा था. सो राम हैज, सबसे पहले DCA और P, यहाँ पे हमने E को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, डिलीट कर दिया है. इसी तरह से यहाँ पे हम D को रिप्लेस कर रहे हैं, D को हम हटा रहे हैं, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? राम हैज कैप.
तो जब भी इस तरह से डिलीशन या एडिशन अगर प्रोडक्टिव होगा तो उसका मीनिंग निकलेगा, नहीं तो ये म्यूटेशंस डेवलप करेगा. सो सच म्यूटेशंस आर रिफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस. ठीक है, फ्रेम शिफ्ट और डिलीशन म्यूटेशन. So in this way, the conclusion from this exercise which we have right now done, this is in the form of exercise which we have understood. The insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from the point insertion or deletion. So the insertion of deletion of three or its multiple bases insert or delete one or multiple codon. Hence, one or multiple amino acid and reading frame remains unaltered from the point onwards. So, we have defined here frame shift insertion or deletion mutation. So, this form of the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a contiguous manner. ये लाइन हमने इससे प्रूव किया है. ठीक है, जो हमने पॉइंट सेलियन फीचर्स में देखा था. In a continuous manner it is read. This fourth statement, the codon is read in mRNA in a contiguous fashion and there are no punctuations. तो अगर कुछ भी अंदर ऐड होगा या डिलीट होगा तो भी रीडिंग वैसा ही चलेगा 3-3 के पेयर में, और मीनिंग चेंज भी हो सकता है और कुछ भी दूसरा मैल फंक्शनिंग या म्यूटेशंस भी क्रिएट हो सकता है. सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द फोर्थ पॉइंट ऑफ सेलियन फीचर. नाउ another important topic, the detail of tRNA. This is one of the type of RNA. It is also known as transfer RNA and it is said to be a adapter molecule. Why it is so? Let us discuss about it. From the very beginning of the proposition of code, it was clear that Francis Crick, he said that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. दोनों में कुछ लिंक होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था. Because amino acids have no structural specialities in to read the code uniquely. वो अपने आप ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन चेन बनता है. बट कुछ कनेक्शन, कोडेड मैसेज कुछ होना चाहिए और इनमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए. और जब कोडेड मैसेज एमआरएनए द्वारा ले जाया जाता है राइबोसोम के ऊपर, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए या ऐसी कोई कनेक्शन होना चाहिए जो इसको समझ सके. अगर आप जापान जाते हो और आपको जापानीज़ नहीं आती है तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा चाहिएगा या आपका कोई ऐसा फ्रेंड चाहिएगा जो आपकी लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करके उनको समझा सके. ठीक है, तो यहाँ पे टीआरएनए मॉलिक्यूल इसी तरह का अडेप्टर मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो भी एमआरएनए मैसेज लाता है वो ये सबसे पहले एक्सेप्ट करता है और उसको समझ के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, हम सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं. ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है. लिखना क्या है आपको, जैसा बुक में मैं अंडरलाइन करवा के पॉइंट वाइज देती हूँ, आपको एज सच याद करने हैं पॉइंट्स उसी सीक्वेंस में. ठीक है, ट्राई टू अडेप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टीआरएनए and Francis Crick postulated that the presence of this adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid. दोनों ही काम कर रहा है. mRNA को पहले रीड करता है, उसका मैसेज एक्सेप्ट करेगा और फिर वो मैसेज एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करेगा और फॉलो करके उसको क्या फॉलो करना है, mRNA जो मैसेज दिया है कि सबसे पहले आप ये वाला अमीनो एसिड लाओ. जैसे एप्पल की स्पेलिंग फिर से हम याद करें तो आपको सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट ढूंढना है. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को हम रिलेट कर रहे हैं अमीनो एसिड से. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए अमीनो एसिड लाना है. फिर उसके बाद फिर से टीआरएनए ढूंढेगा, उसके लिए दूसरा आएगा. एक अमीनो एसिड एक ही
एक टीआरएनए मॉलिक्यूल एक ही अमीनो एसिड को लाएगा। या फिर हम समझ सकते हैं कोडोन्स, एक्चुअली ये पहचानता है अपनी कोडोन्स से, ठीक है, तो वो उसके रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। सो ये भी उसका काम है। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, उसका दूसरा नाम है, टीआरएनए का दूसरा नाम है सोल्यूबल आरएनए, and it was known before the genetic code was postulated, but however its role as an adapter molecule was assigned much later। क्योंकि हर बार कोई भी नई हाइपोथेसिस दी जाती है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, जैसे जैसे टेक्निकल थिंग्स क्रिएट होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप होता है, एडवांसमेंट होता है, तो सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, ठीक है। तो उसके बाद पूरे कंसेप्ट्स भी थोड़े थोड़े रिवाइज होते हैं। Now let us talk about the detailed structure regarding tRNA. So tRNA, अगर हाँ आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे दो तरह के tRNA आपको दिखाए हैं। एक्चुअली ये पूरा RNA मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्ट्रैंड इज अ सिंगल ओनली। आप देखो यहाँ से ये स्ट्रैंड चालू हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे लूप फॉर्म कर रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, अगेन यहाँ पे लूप फॉर्म कर रहा है, इस तरह का ये एंड है, एंड अगेन इट इज मेकिंग लूप लाइक दिस, और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ बीच में कहीं भी डीएनए की तरह बॉन्डिंग नहीं है। एक इसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए दूसरी तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो इसको स्टेबल करके रखते हैं, बाकी बेस पेयरिंग जैसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप, सबसे पहला सेंटेंस है एंटीकोडोन लूप, और ये बताया गया है ऑलमोस्ट इस रीजन में। आप देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो लूप है, वहां पे एंटीकोडोन, एंटी क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर अभी हम समझें एंटीकोडोन की लोकेशन, और उस पे लिखा हुआ है यूसीए, यूसीए। सो वो क्या करेगा, दिस इज एन एमआरएनए, और ये प्रोटीन सिंथेसिस F5 डैश डायरेक्शन से 3 डैश डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा। तो सबसे पहले यहां से रीडिंग शुरू होगी AGU, दिस इज द कोड, एंड सपोज दिस इज द कोड, देन उसका जो एंटी होगा वो यहां पे साइट उसकी प्रेजेंट होगी। सो अगर A यहां पे है तो डेफिनेटली A का ऑपोजिट होता है थायमिन, बट दिस इज एन mRNA, तो आरएनए में थायमिन कभी नहीं होता, उसकी जगह पे यूरासिल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट है यू। जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी, और यू का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए। तो इस तरह से यहाँ पे एंटीकोडोन यूसीए होगा, इसीलिए वो कोड करेगा एजीयू को। और एजीयू, अगर आप जेनेटिक कोड वाला चार्ट देखो तो एजीयू इट स्टैंड्स फॉर सीरीन, इसलिए ये सीरीन को पकड़ के लाएगा। अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 हैं, और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, बट कौन सा अमीनो एसिड इसको पिक करना है वो इसको एंटीकोडोन से पता चलेगा, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन की साइट है इसकी, तो यहाँ से ये इस लूप से इसको आइडेंटिफाई करेगा और जाके सीरीन को ये इस एंड पे लेके आएगा। ये इसके हाथ हैं, इसलिए इसने सीरीन को यहाँ से पकड़ रखा है, और ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो सेंसरी ऑर्गन से हम सेंस करते हैं, या आईज हो सकती हैं, या नोज हो सकता है, वॉट एवर, बट यहाँ से एंटीकोडोन से ये इसको पहचानेगा और इस एंड से ये पकड़ के लाएगा। तो सीरीन को सबसे पहले लाया, अब जो भी यहाँ कोडोन होगा उसके एंटीकोडोन वाले टीआरएनए आएंगे। जैसे नेक्स्ट कोड है यूसीए, तो इसका एंटीकोडोन होगा एयूजी, ठीक है। तो एयूजी किसके लिए पहचानने के लिए है, यूसीए के लिए, और यूसीए किस कोडोन के लिए है, टायरोसिन, तो इसलिए ये टीआरएनए टायरोसिन को पकड़ के लाएगा। तो सबसे पहले सीरीन ज्वाइन होगा, फिर दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये दोनों अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ जाएंगे। फिर जैसे ही टीआरएनए का काम खत्म होगा, फिर ये चला जाएगा, सीरीन को यहाँ पे रख के चला जाएगा। इसके बाद टायरोसिन को ये रखेगा और फिर ये भी चला जाएगा।
तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं, बट अभी उतना अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो अभी इतना ही समझो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस तरफ एंटीकोडोन है और इस तरफ ये अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, ठीक है। सो tRNA हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor end. कहाँ होगा amino acid acceptor end? Here. And tRNAs are very specific for each amino acid. For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. And there are no tRNAs for stop codon. इसीलिए tRNA कितने होंगे? 61 होंगे. क्यों? क्योंकि टोटल कोडोन्स कितने हैं? 64. But out of 64, 3 codes are meant for no amino acid because they are stop codons. तो कितने बचे? 61. तो 61 जितने भी रिमेनिंग कोड्स हैं वो किसी न किसी अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे उनके कोड एंटी कोडोन्स की वजह से, ठीक है। एंड इट्स स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन इसका याद रखना है। सो इन दिस वे टुडे वी हैव लर्नड दिस टॉपिक which was regarding the importance of transfer RNA and the important structure of transfer RNA, as well as how the mutations and the genetic code they are related. So today we are ending our ending our session here, and I hope आज वेंसडे है, आपको याद होगा और आपने आपका जितना भी रिमेनिंग अब तक का होमवर्क है, आपका वर्क है बायोलॉजी से रिलेटेड एवरी चैप्टर, वो कंप्लीट करके आप सबमिट करवा रहे होंगे। अगर नहीं करवाया है तो प्लीज़ आप एज अर्ली एज पॉसिबल यू कंप्लीट इट, नहीं तो हम जो भी चैप्टर्स चलाएंगे आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। एंड एंड मोमेंट पे कोई भी काम मत छोड़ना। सो टिल देन होप यू लाइक दिस डिफरेंट टॉपिक। अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े थोड़े अलग होंगे, अभी तक आपने इनका आइडिया नहीं लिया होगा, तो जब भी हम नए टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हमको। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस टॉपिक, दिस चैप्टर, एंड टिल देन रिवाइज योर वर्क प्रॉपरली, डू योर वर्क प्रॉपरली, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।